تو وردیوں والے تھے جنہوں نے آئین کو توڑا. آپ کے آرمی چیف جو ہیں وہ اس طرح کا رول پلے کرتے ہوں تو ان کا جو کام ہے وہ اپنا کام کریں, اور یہ کام ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کا. اپنے خلاف عوام کی نفرت کو نہ بڑھائیں, آئین کے ڈومین میں رہیں. آسان رستہ دیکھ لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آپ اقتدار میں آ جائیں. اس نظام کے ساتھ نفرت کرنی چاہیے, ان کی جان چھوڑ دیں معاشیت کی. عوامی طاقت سے اس طرح ہوگا کہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی. گروپ سیاست کے اندر موجود ہیں جو ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کو بلیک میل کرتے ہیں. سیاسی جماعتیں ہیں وہ کمپنیز بنتی جا رہی ہیں. اتنا زیادہ خوف پھیلایا گیا پاکستانی ریاست کی طرف سے, شاید ہمارے گھروں سے قبضہ کر کے ہمیں سڑکوں پہ گولیاں مار دیتے. جوڈیشری کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی, اس میں جوڈیشری ناکام ہے. عامر نے براہ راست حملہ کیا تھا جوڈیشری کے اوپر, اس میں جوڈیشری کی اپنی کوتاہیاں بھی ہیں. کبھی مجھے خوف محسوس نہیں ہوا. باغی ہوں میں, باغی ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں میاں امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل. ناظرین, اسلام آباد میں ایک وکلا کنونشن ہوا جس میں ایک لڑکی دھواں تقریر کر رہی ہے اور وہ مختلف حلقوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. سیاسی جماعتیں ہوں, عدلیہ ہو اور یا کوئی طاقتور ترین حلقے ہوں, ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے ساتھ ربیہ باجوہ موجود ہیں جو نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ہیں, اور یہی وہ لڑکی اسلام آباد کنونشن میں خطاب کر رہی تھی. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اتنا شدید غصہ اور اس نظام کے خلاف علم بغاوت جو ہے وہ بلند کیے ہوئے ہیں. السلام علیکم میم. کیا وجہ ہے اسلام آباد میں آپ خطاب کر رہی ہیں اور شدید تنقید اور تیز تیر چلا رہی ہیں الفاظوں؟ دیکھیں جی, وہی بات کی ہے جو اس وقت جو جینون بات ہے پاکستان کے اندر, اور واقعی اس نظام کے ساتھ نفرت کرنی چاہیے. اگر ہم اس سماج کو اور اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم نفرت کرتے ہیں اس نظام سے جو استحصالی نظام ہے, جو جبر کا نظام ہے, جہاں پہ لوگوں کی آوازوں کو گھونٹا جا رہا ہے, جہاں پہ لوگوں کے بنیادی جو آئینی حقوق ہے پاکستان کے شہریوں کو وہ میسر نہیں ہے, جہاں پہ قانون نہیں ہے. تو پھر ہم اور کیا کریں؟ اور یہ پورے میں اکیلی اپنی بات نہیں کر رہی, یہ پورے پاکستان کی آواز ہے. لوگ اب چاہتے ہیں کہ ان کا استحصال بند ہو, یہ جبر کی فضا ختم ہو اور یہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی ہو. صرف آپ ہی بات کرتی ہیں, باقی لوگ تو بہت گھٹن اور کم بات کرتے ہیں. دیکھیے, ہر جگہ یہ تو آوازیں آ رہی ہیں, لوگ بات ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ بات درست ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ خوف پھیلایا گیا پاکستانی ریاست کی طرف سے, اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ اپنے ایجنڈے کو چلانے کے لیے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خوف کی فضا پیدا کی جائے. اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کردار جو ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگا, وہ درست نہیں ہے. ان پاکستان کی یہ جو سیاسی جماعت ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی, اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بھی کسی جبر کے خلاف, جو ظلم کے خلاف, وہ اپنا کردار ادا کرے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسی سسٹم کا حصہ بن جاتی ہیں, بجائے اس کے کہ وہ عوام کی سپورٹ سے کھڑی ہوں, وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے, وہ کیوں کھڑی نہیں ہوتی سیاسی جماعت؟ کیونکہ ان کا جد و جہد کے اوپر یقین نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اپنے اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. وہ ان کے اندر ایک مخصوص قسم کے ٹولے ہیں جو کہ اقتدار چاہتے ہیں. صرف پاکستان کے جو عوام ہے ان کی شمولیت پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں. ہمارا جو نظام ہے یہ تو جمہوری ہے. پہلے میں ایک بات تو کر لوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کمپنیز بنتی جا رہی ہیں. اس میں جو ان کے حکمرانوں اور محکوموں والا انہوں نے سلسلہ کر لیا ہے. پاکستان کے جو سیاسی نظریاتی ورکرز ہیں ان کو سیاسی پارٹیاں اگنور کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ پولیٹیکل کیڈر ختم ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر سے وہ جو سیاسی کیڈر تھا جس نے آگے آ کے لڑنا ہوتا ہے, جس نے مزاحمت کرنی ہوتی ہے, جس نے آواز اٹھانی ہوتی ہے, اس کلچر کو ختم کر دیا گیا ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ تو ذمہ دار ہے ہی ہے, لیکن سیاسی جماعتوں کا بھی کردار ہے. سیاسی جماعتیں مطلب ووٹ کے ذریعے آتی ہیں, وہ کھڑی ہوتی ہیں, یہ پورا ایک نظام ہے, پورا طریقہ کار ہے, جمہوری سلسلے سے منتخب ہو کے آتی ہیں. جی یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے سیاسی جماعتیں, لیکن اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایسا رول ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان کے اندر مداخلت کی الیکشن کے پروسیس کے اندر, اور اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ کو نہیں بننے دیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے پریشر گروپ سیاست کے اندر موجود ہیں جو ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کو بلیک میل کرتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے چہرے ہیں جو ہر حکومت میں آپ کو نظر آتے ہیں, اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا قصور ہے. ان کو چاہیے جو پہچانے ہوئے چہرے ہیں کہ وہ کیوں ان کو جگہ دیتی ہیں کہ وہ اپنے نظریاتی کارکنوں کو, اپنی خواتین جو آپ کی لیڈرشپ ابھرتی خواتین ہیں, ان کو نظر انداز کر کے یا تو ایلیٹ اور اشرفیہ کے جو طبقات ہیں, جاگیردار ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں, یا پھر وہ ان لوگوں, اور وہ جو اس میں میجورٹی وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ لوگ ہیں. اچھا, اس میں آپ نے ایک تحریک شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے, وہ تحریک کیا کرے گی؟
देखिए, एक मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाऊंगी कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर तमाम जो मज़ामती तबक़ात हैं उनको ख़त्म किया गया, ट्रेड यूनियंस ख़त्म की गई, तलबा यूनियंस आपके अब एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से लीडरशिप जो है वो उस तरह उभर के आई नहीं सामने। दूसरा, इस तरह का माहौल रहा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जिसमें सियासी जमातें भी अब शामिल हैं कि उन्होंने भी आसान रास्ता देख लिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के आप इक़्तिदार में आ जाएँ, तो वो तवज्जो नहीं रही कि एक उभार होता नई क़यादत का। तो इस तरह के जब हालात होते हैं तो उसमें जो हमारी बार एसोसिएशंस हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा। अयूब आमरीत से लेकर आज तक जो सियासी हमारी जो वकला तंजीमें हैं उनका बड़ा किरदार रहा। मुशर्रफ आमलीत को भी जब एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई बाहर बैठी थी लीडरशिप, कोई एग्ज़ाइल में ये चले गए, तो उसमें भी आपने देखा कि लीड वकला ने किया था, क्योंकि आइन और कानून की बालादस्ती का सवाल था। एक आमर ने बराह रास्त हमला किया था जुडिशरी के ऊपर और हम लोग कस्टोडियन थे कॉन्स्टिट्यूशन के और हम खड़े हुए। आज भी जो हालात है मुल्क के अंदर, आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह अदालती निज़ाम को गैर फ़ाल कर दिया गया है, अदालतें इंसाफ देने में बेबस नज़र आती हैं, उसमें जुडिशरी की अपनी कोताहियाँ भी हैं, उसमें अपनी कमज़ोरी भी है और उसके अंदर एक जबर की फ़िज़ा भी है। तो हम ये समझते हैं कि इसमें जो हमारा किरदार है बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स का, उनको भरपूर अंदाज में वो अदा करना चाहिए। वैसे तो कभी भी हमारी स्ट्रगल नहीं रुकी, हम लोग हर दौर में, चाहे वो उसका क्या सियासी हुकूमतों का भी दौर हो, तो बार का किरदार अपोजिशन का रहा है और हमने वो किरदार अदा किया है। और उसमें मैं एक बात ज़रूर करूँगी कि मेरा तल्लुक़ जो है प्रोफेशनल ग्रुप के साथ है, जिसकी सरबराही हामिद खान साहब ने की है। और हामिद खान साहब ने हर दौर में, चाहे PTI की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे किसी और की हुकूमत हो, जब भी हुकूमतों ने कोई गलत किया तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का किरदार अदा किया ताकि मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो। आपको याद होगा कि जस्टिस फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ PTI की गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस भेजा था, तो हम लोगों ने उसकी मुखालफत की थी। हम हर दौर में अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं और ये आवाज़ अब उठती रहेगी। आपकी आवाज़ तो उठती रही है, 2007 में भी, 8 में, 9 में तहरीक जो है वो चलती रही, लेकिन उसका अवाम को क्या फ़ायदा हुआ? अभी तक जो है वो मुख्तलिफ केसेस जो हैं तकरीबन 2 लाख के करीब पेंडिंग हैं और इंसाफ जो है वो बर वक्त अभी भी मुयस्सर नहीं होता। देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते। अब आपसे मैं सवाल करूंगी कि आप मुझे बताइए कि एक जुल्म हो रहा होगा तो क्या आप चुप होकर बैठ जाएंगे? आइन को तोड़ा जाएगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। तहरीकों की कामयाबी ही है। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान जैसी रियासत में जहाँ पर बहुत डीप रूटेड इंटरेस्ट हैं बहुत सारी कुव्वतों के, उसको बचाया ही पाकिस्तान के लोगों ने जो जद्दोजहद करते रहे हैं। MRD की मूवमेंट थी, आपका क्या ख्याल है कि मूवमेंट नहीं चल, उसको लोग कहते हैं कि नाकाम होगी, क्या पॉलिटिकल कल्चर तब्दील हुआ, लेकिन क्या वो मूवमेंट नहीं चलनी चाहिए थी प्रिंसिपली? दूसरी बात यह है कि जो जुडिशल सिस्टम की बेहतरी के लिए हमने आवाज़ें उठाईं और लोगों में अवेयरनेस आई, लोग कम अज़ कम निकल के अपने राइट्स के लिए बात भी करते रहे। और मैं ये समझती हूँ कि सियासी जद्दोजहद की नाकामी ये नहीं होती कि हम उसके शायद वो नताइज हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। उसकी नाकामी उसका तसलसल का ख़त्म होना या उस मूवमेंट का ख़त्म होना जो होता है वो नाकामी होती है। जब जद्दोजहद तसलसल से जारी होती है तो वो सियासी कैडर और आम लोगों की कामयाबी है कि वो जबर से लड़के और कामयाब है। जहाँ तक बुकला तहरीक का ताल्लुक़ है, मैं आप दुनिया की तारीख देख लें, ये पहली जद्दोजहद थी, पहली मूवमेंट थी जो वर्किंग क्लास ने चलाई और वो कामयाब हुई। आपने देखा कि वो रिस्टोर भी हुए चीफ जस्टिस, लेकिन बाद में जो ये जुडिशरी की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करती, उसमें जुडिशरी नाकाम है। हम लोग कामयाब हुए, हमने इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी। और आपको याद है कि ये वर्दियाँ पहन के अवाम में नहीं जा सकते थे, इतनी लोगों के अंदर इनके खिलाफ नफरत थी। किनके खिलाफ? ये जो वर्दियों वाले थे जिन्होंने आइन को तोड़ा। आपको पता है कि जिन्होंने आइन को तोड़ा, मुशर्रफ दौर में किसने आइन को तोड़ा था? तो उनके ख़िलाफ़ लोग निकले। और आज भी मैं ये समझती हूँ कि उसमें जी अपने ख़िलाफ़ अवाम की नफ़रत को ना बढ़ाएं, आइन के डोमेन में रहें ताकि इनकी भी रिस्पेक्ट हो और पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता और एक तरक्की की तरफ उसका सफ़र शुरू हो। मैडम, आप इस कदर निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत कर रही हैं, डर खौफ नहीं होता? और सारी ज़िंदगी गुजर गई, 37 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। मैंने 7 साल की उम्र में पहला प्रोटेस्ट किया था जो ज़िया दौर के ख़िलाफ़ था। ज़िया दौर में था, उसके ख़िलाफ़ मैं अपने वालिद के साथ आई थी माल रोड पे और मैंने वो गिरफ़्तारियाँ होते देखी, उसमें गोविंदी साहब भी थे। और उसके बाद से लेकर आज तक जो भी आमरीतें आईं, जो भी खुफिया मार्शल्ला आते रहे, जो भी सिविलियन आमरीतें आईं, जितना मेरा छोटा मोटा रोल बनता है, जो मुझे समझ आती थी, मैं आवाज़ उठाती रही। खौफ की तो मुझे कभी मुझे खौफ महसूस नहीं हुआ। ये जो कौमी सलामती के इदारे होते हैं, ये तो मुल्क की सलामती के लिए काम करते हैं। जिस तरह अभी आर्मी चीफ़ की जानिब से ताजरों से मुलाकात की, मुख्तलिफ़ हलकों के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे मुलाकात की ताकि मुल्क संवर सके।
देखिए मुल्क तो हमेशा ये मुलाकातें करते रहे हैं, हर दौर में भी पहले भी करते रहे हैं, और आज जो इतना लंबा चौड़ा रोड मैप दिया है तो उससे तो मुल्क की सूरत-ए-हाल नहीं संवरनी, क्योंकि ये जब तक पीछे अवामी मैंडेट नहीं होगा और एक अवामी हुकूमत नहीं होगी जो जेन्युइनली अवाम के साथ मोहब्बत करती हो, ये सिस्टम तब्दील नहीं होगा। और मैं इनको सिर्फ एक बात कहूँगी कि आप बचाए एक प्रोग्राम देने कि आप इनकी जान छोड़ दें मौशियत की, तो फिर मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सियासी जमातें और कुछ हलके जो हैं वो ये तासुर दे रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को जो है वो इस तरह मुलाकातें नहीं करनी चाहिए, ये जिनका काम है उनको करने देना चाहिए। यही मैं कह रही हूँ ना जी, मैंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में मैंने यही बात की है। मैंने तो सबसे पहले इस अमल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है कि उनको नहीं ज़ेब देता, उनको आइन इजाज़त नहीं देता कि वो इस तरह अपना, कभी किसी और अपने मुल्क में देखा है कि आर्मी चीफ जो है वो इस तरह का रोल प्ले करते हों। तो उनका जो काम है वो अपना काम करें, और ये काम है इलेक्टेड गवर्नमेंट का, वो आए फौरी तौर पे निगरान जो है इलेक्शंस करवाएं, और उसके बाद फ्री फेयर इलेक्शंस और पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ पाकिस्तान सफ़र करेगा। जिस तरह ये अब हमें मुदाखलत नज़र आ रही है कुछ कुव्वतों की, जिस तरह पहले 2 प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ, और उसमें मैं जो 13 जमातों का जिसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं उनको भी हमेशा उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मैंने मजम्मत की कि वो किस तरह खुल के कहते थे कि नहीं नहीं, हीले बहाने देते थे, हमें जवाज़ देते थे। आज वही सफ़र करेंगे। आप देखें, मुझे लगता है कि मुल्क के अंदर अभी इलेक्शंस की हमें नहीं लग रहा कि मुल्क में इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा जुल्म होगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ। आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा? देखिए, अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद तो हम तवक्को तो यही करते हैं, जिस तरह आवाज़ें उठ रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर अवामी उमंगों का एक वफाकी अदारा है, उसने आवाज़ उठाई, पूरी पब्लिक की आप आवाज़ सुन लें। तो इस तरह इस नफ़रत के साथ और इस तरह बेआईनी की कैफियत में मुल्क नहीं चलते। आइन जो होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि आइन एक कागज़ है। आइन वैसे तो पाकिस्तान एक बाउंड्रीज़ हैं, लेकिन जब आइन है तो वो हमें शनाख्त देता है कि ये पाकिस्तान है। तो आप पाकिस्तान की शनाख्त को ख़त्म करके कैसे पाकिस्तान चलाएं? आप अपनी तकरीरों में, अपने खिताबात में शायरी का बड़ा इस्तेमाल करती हैं। नहीं जी, मैंने कोई शायरी का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक जज्बात की तर्जुमानी होती है शायरी, और जो पॉलिटिकल शायरी है, मैं जितनी जो कुछ ऐसा कलाम है जैसे फैज़ का था, वो 85 की बात है, इकबाल बानो गाती थी, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। उस वक्त उनकी सालगिरह थी गालबन, और उन पर पाबंदी लगी थी, तो आलमरा में गाया था। सबसे पहले मैंने उधर एक पार्टिसिपेट किया, और जब वकला तहरीक थी तो मैं रोज़ ये नज़म पढ़ के निकलती थी, हम देखेंगे। इसमें एक उम्मीद नज़र आती है, और मुझे यकीन है कि अवामी ताकत से इस तरह होगा कि पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम शायरी से भी मदद लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है हम आप जैसे साथियों की बात से भी मदद लेते हैं। तो बात तो ये है कि खौफ की फ़िज़ा टूटे और पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और हमारा सफ़र सीधा हो। हम बागी हैं, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, वो सुनाई थी। अच्छा, मुकम्मल उसका एक शेर सुना देते हैं। वो तो खैर बहुत बड़ी लंबी नज़म है। मेरे हाथ में हक़ का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है, मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मौत की खातिर ज़िंदा हूँ, मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। आपको तुलुए सहर होती हुई नज़र आ रही है? बिल्कुल, बतौर एक्टिविस्ट मैं बिल्कुल मायूस नहीं। ये मेरा मुल्क है, ये आप सबका मुल्क है, और इस मुल्क को बचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और मायूसी तो होती नहीं एक पॉलिटिकल वर्कर की ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में कभी मायूसी नहीं हुई, और मैं ये समझती हूँ कि जो हम लोग आवाज़ उठाते रहे, सारे पाकिस्तान का पॉलिटिकल कैडर्स, पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के वर्कर्स, उस वजह से पाकिस्तान जो है वो हम मतलब अपने घरों में तो बैठे हुए हैं, वरना तो ये शायद हमारे घरों से कब्ज़ा करके हमें सड़कों पर गोलियाँ मार देते। ये हमारी जदोजहद है जिसकी वजह से हम लोग कुछ ना कुछ अपना तहफ़्फ़ुज़ फील करते हैं। और मैं बड़ी पुर उम्मीद हूँ, पुर यकीन हूँ मैं कि पाकिस्तान के लोगों का राज होगा, एक अवामी राज होगा। सिर्फ बात यह है कि पाकिस्तान के लोग निकलें जैसे पूरी दुनिया में लोग निकलते रहे, और आपने देखा कि तहरीकें जो थी उन्होंने मुल्कों की किस्मतें तब्दील की। इधर भी ऐसे ही हो। जी नाजरीन, आपने मैडम रबिया बाजवा की गुफ्तगू सुनी, और इनका ये कहना था कि यकीनी तौर पर तुलुए सहर होगी और आवाम जो है वो राज करेगी। किसी और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।